So today Kunj is first time he is coming in the class. Okay, we'll start the class. So we have the last part of this reasoning. Okay, so we have a logical reasoning now, and in that logical reasoning, we will deal with only 4 types of reasoning. So please, you, as I told you earlier, also that today and tomorrow we'll do this part. How much we can able to do. The later you can do at home, and if any problem is there, you can definitely ask me. But I'll not extend it further more than these 2 days. So let us start straight away. Okay. See. Okay. The first thing is the logical reasoning, which is actually divided into 4 categories. Okay. There are many logical reasoning. Not only this, there are many things that there. Number series is there. All these things are there. So everything we cannot include in the course. So these are the things we can include. One is coding, decoding. Okay, so coding, decoding means sometimes you send a message to a person in a coding form. So he has the key to decode it. He decode it, and then he can understand the message. See, the electricity is gone. Okay, still it is visible, but okay, no problem. See, so the coding and decoding, similarly, decoding also, if someone is sending a message in a coded form, you have to decode it to understand the message. Then we have a blood relation question. Okay, so the blood relation questions are also there. Okay, then we can see the odd man out, and then the syllogism. Okay, so these are the things we can go through. Okay, so we'll start with the few things. So let us start with the coding. So please note down this quickly. Logical reasoning, mainly these 4 types of things you can deal with. First of all, see, logical reasoning is the process of using a systematic series of steps based on sound mathematical procedures and given statements to arrive at a conclusion. Logical reasoning tests are the part of most of the competitive exams. These tests are designed to assess one's ability at skills such as coding, decoding, interpreting patterns, number sequences, or the relationship between the persons, etc. In this chapter, you will learn about the coding, decoding, blood relations, odd man out, and syllogism. First, we start with coding, decoding. Coding is a rule for converting the information in the form of letters, words, or phrases into some or other form of representation. Decoding is the reverse process of coding. It converts the message sent by the source to the information which can be understood by the receiver. Some basic methods of coding, decoding. First of all, letter coding. So in letter coding, the alphabet starting from A to Z. Okay, A to Z, it is starting. Okay, so we number it say A is 1, 2, 3, 4, 5, 6, so it is 26. So how to remember this? You have to remember in a group of 5, like A, B, C, D, E. So this E can be
So E can be remembered as a 5. Then F, G, H, I, J. J can be 10. In this way it will be continue. So Y will come as 25 and the last number Z will be 26. Okay, so this letter with the number you can remember. Okay, so this is the first thing. Then so there are many patterns in the letter word. Like one is given a repetition pattern. Okay, repetition pattern. There are many patterns in this coding part. So like first is repetition. The words are repeated. Repetition, like cricket, it is given here cricket. Okay, so this can be written as T, E, K, C, I, R, C. Okay, just the reversing the thing. Then again, second one is this is the first pattern. Second pattern is same word, say cricket. Okay, so it can be written as E I T, E I T, K C R C. In this way, what happened? The vowels are A E I O U. The vowels are in this pattern only. First of all, the vowels are taken together E I, then T K C R C. So you have to understand the pattern. Okay, so it can be given in any way. Like it can be question will be given like this. If the cricket can be coded, if the cricket is written as this, then how this word is written? That is the question. Same way, if the cricket is written in this way, how this word is written? So you should understand the pattern. If you are not understanding the pattern, then you cannot code it. Okay, like here it is. Question can be like this: cricket is coded as this. Then how you can code it? Say basketball. How the basketball is going. So first of all, what you do, you first reverse the order, and then whatever the vowels is there, you bring it first. So according to this question, it can be first of all basketball. It can be coded as L L A B. This can be actually coded as C. Out of this, A, E are the A, E, A are the vowels. So we write both the A together and then E. Okay. After that, we write it same double L, then B, then T, E, K, S, B. E, K, S, B. So this is the answer, correct answer. So if cricket is coded as this, then the basketball will be coded as this. So that this could be one of the questions that if a cricket word is coded as this way in according to the pattern. So pattern you should understand.
ओके नेक्स्ट, चलो नेटवर्क का इशू है आज, थोड़ा नेटवर्क वीक है घर पे, तो इसलिए कनेक्शन कट हो गया. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द पैटर्न. देन द कैन बी then one of the word is like cricket is there, it can be written in alphabetical order. Okay, like cricket is there, same word is there, third one alphabetical order, so it can be written as CCEI then KRT. Okay, so you should understand that this same word cricket can be written in alphabetical order. So same way the question can be, if the cricket is coded as this, then how you can code a particular word will be given to you, how you will code this word. So you should understand that this is an alphabetical order. Okay, so first see, first the repetition, then repetition and the vowel first, and then this one is alphabetical order. So many questions can come, and the fourth one it is given. Multiplication is called as this. You have split the word into equal parts. Multiplication. Then the reverse letter. Okay. Then again, some it is divided into two letters. Like here it is given C. Multiplication. Multiplication. So how many words are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. हाँ एल मैंने मिस किया यहाँ पे, इसलिए नहीं हुआ था एल. ओके, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 1 2 3 4 5 6 7. तो ये इस तरह से रिपीट किया, अलग अलग करके फिर इनको कोड कर दिया. तो ऐसा लिखा होगा मल्टीप्लिकेशन कैन बी कोडेड एज, ऐसा लिखा होगा LPIPLUM, और फिर इसका भी NOIPACI. इस तरह से समझना होगा, इस तरह से दिया होगा मल्टीप्लिकेशन कैन बी कोडेड एज दिस. अभी ये कैसे कोड हुआ, तो ये पैटर्न है, ये पैटर्न यू शुड अंडरस्टैंड कि इसको अलग अलग कर दिया. इवन नंबर ऑफ लेटर्स है, उनको पहले तो डिवाइड करके फिर आधे को उल्टा कर दिया. तो इसी तरह से ऐसा दिया होगा कि मल्टीप्लिकेशन इज कोडेड एज दिस. then how you code say the word दिया होता है, मान लो ये दिया है परमुटेशन. एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11. हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं खुद का नहीं बनाना है, खुद का क्यों बनाना है? ये जैसे कि मैंने चार एग्जांपल दिए यहाँ पे. पहला एग्जांपल में पूरा वर्ड को रिवर्स कर दिया है. दूसरे एग्जांपल में क्या किया, रिवर्स करने के बाद वावल्स को एक साथ ले लिया. तीसरे में क्या किया, तीसरे में अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिया. चौथे में क्या लिया, चौथे में पहले तो बड़ा वाला वर्ड है उसको डिवाइड कर दिया 50-50% में, और फिर उनका रिवर्स किया. तो तुम्हें क्या करना होगा, पैटर्न समझना होगा. क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि इफ मल्टीप्लिकेशन इज कोडेड एज दिस, देन हाउ यू कोड परम्यूटेशंस. इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, तो तुम्हें क्या समझना पड़ेगा, तुम्हें पैटर्न समझना पड़ेगा. पैटर्न समझ में नहीं आया तो यू कैन नॉट आंसर इट, क्योंकि आंसर इतना सिमिलर होगा कि तुम उसको बिना पैटर्न समझे इसका आंसर दे ही नहीं सकते. यही तो कोडिंग है. ये किसने मैथमेटिक्स में आता है, ये कभी भी इफ यू गिव एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये पार्ट होता ही होता है, लॉजिकल रीजनिंग. क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ता है. हम लोग सोचते हैं कि भाई हाउ इट इज थिंक, कैसे आया, ये कैसे आया. तो ये पैटर्न जब समझोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब करोगे, इस तरह के अगर मिक्स मैच क्वेश्चन करोगे तभी होगा ये. ऐसा नहीं कि एक मैंने ये बता दिया क्रिकेट को रिवर्स कर दो ये हो गया, इसको वाल्स को पहले ले लो, ये ऐसा नहीं चलेगा. ये अगर मैंने ये जैसे पैटर्न तुम्हें समझा के मैंने तुम्हें एक साथ 20-25 क्वेश्चन दे दिया मिक्स, तो तुम्हें समझना होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सोल्व हुआ, वही टेक्निक. और इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कंपटीशन एग्जाम में टाइम इतना कम रहता है कि जो जिसका थिंकिंग पावर बहुत फास्ट है वही इसको सोल्व कर पाता है, नहीं तो ये सोल्व नहीं होता क्वेश्चन. ये टफ क्वेश्चंस होते हैं, ये इतना मत समझना कि बहुत इजी होता है. इसमें क्यों मैथमेटिक्स में ये आता है, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग है. ये तुम पार्टिकुलर लॉजिक होता है, ऐसा नहीं भी कि मेरा मर्जी को मैंने कैसे भी लॉजिकल आ रहा है. जैसे कि ये क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन इज कोडेड एट दिस, हाउ दिस कैन बी कोडेड. तो सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे ये ब्रेक होगा. इसको रिवर्स करोगे तो ये होगा TUMREP, ये हो गया. और इसको रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा SNORE,
IPA। देखो आंसर ये होगा, if this is coded as this then permutations can be coded as this। अभी कोई ऐसा नहीं कि कोई मीनिंगफुल वर्ड आएगा, देयर इज नो मीनिंगफुल वर्ड, ये सिर्फ कोडिंग और डिकोडिंग का वर्ड है। ये कहाँ पे यूज होता है, ये जहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना मल्टीपल इंटेलिजेंस, ओके, जहाँ पे किसी को कुछ मतलब कुछ मैसेज देना होता है, तो दे आर यूजिंग दिस लैंग्वेज, दैट इज नोन एज अ कोडिंग लैंग्वेज। कोडिंग लैंग्वेज ये ऐसा नहीं कि ये बहुत छोटा एरिया है, दिस इज अ वेरी वास्ट एरिया। तो कोई भी चीज कोडिंग लैंग्वेज ये यूज करते हैं कि दे आर यूजिंग दिस कोडिंग, उनको पता है, कोड पता है। व्हाट इज अ कोड, कि लेटर को आधा करके रिवर्स कर दो, दैट इज अ कोड। ओके, तो ये अगर मैंने तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट वेयर आर यू गोइंग, मैंने पूछा तुम्हें वेयर आर यू गोइंग, मैंने ये क्वेश्चन तुमसे पूछा, लेकिन सेम क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको वो लगा दिया, मैंने इसमें कोडिंग लगा दिया। कोडिंग कैसे लगाया मैंने, सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो रहा है, तो मैं इसमें कुछ एक लगा दो, जिसकी इवन नंबर कर दो, वेयर आर यू गोइंग, और इसमें कुछ लगा दो, क्वेश्चन मार्क कर दो, वेयर आर यू, जैसे क्वेश्चन मार्क का भी एक कर दो, तो फिर जो 16 है हाँ सर, इसका टोटल काउंट 16 है। हाँ, तो फिर 16 है तो फिर जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि ऐसा कभी हो रहा है तो बीच में क्वेश्चन मार्क भी लगा के इसको इवन कर सकते। अभी जैसे कि ये है, अभी मुझे इसको तुम्हें मैसेज देना है, ये तुमसे मुझे पूछना है, कोडिंग वे में पूछना है, जो कि दूसरे किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके बाद वो डिकोड करने का वो कोड नहीं है। तो क्या करोगे तुम, पहले तो इसको डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हुआ, इसका मतलब क्या लिखोगे तुम, ERAEREH फिर लिख दोगे GMIGIOGUOY। अभी मैंने तुम्हें ये मैसेज भेजा, माना मैंने तुम्हें ये व्हाट्सएप किया, ओके, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे ये नहीं है, बहुत डेंजरस भी होता है कि जैसे कि टेररिस्ट अटैक जो होता है ना, वो क्या करते हैं, दे आर यूजिंग दिस टेक्निक, वो कोडिंग यूज करते हैं, ओके, कोडिंग यूज करके वो मैसेज भेजते हैं। तो ये मैसेज तुम्हें अगर कोई भी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, कुछ भी लैंग्वेज में हो, समझ में नहीं आएगा, उसमें तुम्हें लगेगा कि ये क्या वर्ड है, ये ई आ रहा है, आर आ रहा है, क्या, व्हाट इज दिस, समझ में नहीं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, ओके, कहीं पर अटैक करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन पूछा है। अभी ये क्वेश्चन तो ऐसा दे दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दीस आर द फ्यू लेटर्स, जंबल लेटर्स, अभी कैसे पता चलेगा कि ये क्या है। तो वो क्या करेगा, वो बंदा क्या करेगा, इसको उसको पता होगा कोड क्या है, तो वो क्या करेगा, टोटल काउंट करेगा, 16 हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे वो ब्रेक करेगा, और फिर इसको वो कोड कर लेगा। वो क्या करेगा, पहले W लिखेगा, फिर H लिखेगा, E लिखेगा, R लिखेगा, E लिखेगा, A लिखेगा, R E लिखेगा, तो इसको समझ में आ जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, उसको ये समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन। ओके, तो ये होता है कोडिंग का वो एप्लीकेशन, दिस इज द कोडिंग एप्लीकेशन। ये इतना इजी नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट यूजिंग द लेटर्स। फिर दूसरा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम जिसमें हम लोग जब पैटर्न को रिपीट करते, क्या बोल रहे हो बेटा, मुझे साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, एक्चुअली नेटवर्क वो ब्रेक कर रहा है, बोलो। हाँ, बहुत तरीका है इसमें, देयर आर मेनी मेनी वेज, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बुक में जो दिया हुआ है ना 4 5 6 7 तरीका, ओनली नॉट दिस, देयर आर सो मेनी वेज, लेकिन हाँ इस सर। बुक में जितना है विल कन्फाइन टू आवर दिस थिंग ओनली। हम लोग, मैं ऐसा नहीं पूछूंगा कि जो एकदम इस बुक में नहीं है, क्योंकि ये एरिया मैंने क्या कहा, दिस कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड ऑल दिस एरिया, स्पेशली दिस कोडिंग डिकोडिंग जो एरिया है, दिस ए वेरी वास्ट एरिया। ओके, ये बहुत वास्ट है, और किस कैसे कोडिंग करना है, डिकोडिंग करना है, वो सीक्रेट जो है बहुत लार्ज है, ये मैं पूरा कवर नहीं कर सकता, तो मैं कुछ पार्ट ही कवर करूंगा जो इस बुक में दिया। ओके, जैसे कि ये 4 तरीका समझ में आ गया, दिस इज रिपीटेशन ऑफ वर्ड। ओके, 4 तरीका है, एक तो रिवर्स कर दो,
दूसरा है रिवर्स करके वायल्स को पहले ले लो, तीसरा है क्या था तीसरा? हाँ, तीसरा था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, और चौथा था इस तरह का ब्रेक करके रिवर्स करो। तो ये है, देयर आर 4 थिंग्स। फिर आता है, नेक्स्ट आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पैटर्न। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन पैटर्न आता है, जैसे कि देन आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन पैटर्न, जैसे कि इसमें दिया हुआ प्लेयर, ऐसा होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा, प्लेयर इज कोडेड एज QNBCJX। okay, then how you can code the word say greater? ये क्वेश्चन है, प्लेयर इज कोडेड एज दिस, हाउ दिस वर्ड कैन बी कोडेड। तो ये ऑप्शन दिया होगा, अभी पहले तुम्हें ये कोड समझना होगा, तभी जाके इसका आंसर निकाल सकते, तो नहीं निकले। तो ये क्या है, प्लेयर है। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो क्या हो रहा है, देखो इस तरह से हो रहा है P and Q, तो +1 हो रहा है, इसका मतलब G का +1 क्या होगा, ABCDEFG H, पहला आएगा H। फिर L is PQ, LMN मतलब +2 हो रहा है, 2 में जा रहा है, तो इसी तरह से RST, तो यहाँ पे आएगा T। फिर ABCD +3 आ रहा है, तो इसी तरह से यहाँ से भी EFG यहाँ पे होगा H। ओके, फिर आता है Y, तो Y आ गया यहाँ पे C, तो Y का C कैसे आ गया, Y का C का +4 किया हमने, साइकिल ऑर्डर में +4 किया, तो Y के साथ, Y के बाद देखो Z, देन ABC, तो इसी तरह से यहाँ पे भी +A करेंगे, 4 करेंगे, तो ABCDE, ये आएगा E। फिर EFGHIJ 5, FGHIJ, तो इसी तरह से यहाँ पे हाँ 5 करेंगे, TUVXY। ओके, तो इस तरह से होगा। लास्ट में है यहाँ पे R का हो जाएगा 7, STUVWX 6, तो ये हो जाएगा EFGHIJ, तो इस तरह से होगा। और फिर ये नहीं होगा, इस तरह होगा, ग्रेट, इस तरह से दिया होगा। जरूरी नहीं है कि वर्ड का कुछ मीनिंग हो, ऐसा जो, जैसे कि यहाँ पे प्लेयर इज कोडेड एज दिस द ग्रीट, मान लो ये ग्रीट एक वर्ड है, ग्रेट हो सकता है डिक्शनरी में, आई डोंट नो। हाँ, यहाँ पे 8.7 मैंने बोला था ना कल की नहीं करूंगा, ये तो घर में कर लो। इसमें वैलिडिटी करना है, कि वैलिडिटी बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसमें एंड और इफ एंड ओनली वाला स्टेटमेंट है। एंड वैलिडिटी तब होगा, वैलिड तब होगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। और का होगा, अगर दोनों में से भी एक ट्रू है तो इट इज ट्रू, और दोनों फॉल्स है तो वो फॉल्स। फिर इफ मतलब पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स होगा, दूसरा वाला फॉल्स है तो पहला वाला ट्रू होगा, इस तरह से। इफ एंड ओनली मतलब P भी ट्रू है, P ट्रू है तो Q ट्रू है, और Q ट्रू है तो P ट्रू, इस तरह का स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। कुछ चीजें हैं, देखो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी यू हैव डन, सो उसको स्किप करना होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो ये हो गया तुम्हारा कोडिंग वाला चेंज। तो इस तरह से इसमें कुछ आता है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पैटर्न है। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन पैटर्न। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन पैटर्न में जैसे कि आया, हाँ जैसे कि मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न थोड़ा टफ पैटर्न है ये। देखो मल्टीप्लिकेशन में जैसे लिखा हुआ है पेंसिल, हमें पेंसिल को कोड किया है FJBFRX। अभी ये पता होना चाहिए तुम्हें कि ये जो अल्फाबेट है वो कहां पर था। यह अल्फाबेट जो है
वो कौन से नंबर पे आता है। तो ये पी अल्फाबेट जो है उसमें दिया हुआ है 16 अल्फाबेट में आता है, तो ये 16 में आता है। ओके, और एफ जो होता है वो 6 में आता है। एफ जो होता है ए बी सी डी एफ वो 6 नंबर पे आता है। फिर देखते हैं ई, ई जो है ए बी सी डी ई 5 में आता है। तो यहाँ पे जे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे वो 10 में आता है। इस तरह से भी कर सकते हो, 16 से -10 करोगे तो 6 आ गया, 5 टू से करोगे तो 10 आएगा, एन आता है, एन इज कमिंग इन 14 नंबर। ओके, सिमिलरली बी इज कमिंग इन 2 नंबर। तो 14 और 2 का तो नहीं मिलेगा। सी आता है 3 में, फिर एफ आता है दोबारा 6, फिर आई आता है 18 में, ओके। तो इस तरह से भी कर सकते हो पैटर्न बिना मल्टीप्लिकेशन का। भी मल्टीप्लिकेशन पैटर्न कैसा दिखा रहा है, जैसे कि पी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ 32 -26 किया हुआ 6, तो ये एफ आएगा 6। इस तरह से करना है। तो ये अभी भी 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। मतलब अगर अगर 26 से ज्यादा आ रहा है तो फिर 26 से माइनस करके निकालना। अगर 26 से कम आ रहा है तो जो आएगा वही। जैसे कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 -26, तो ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा बी। फिर 3 × 2 6, तो ये हो जाएगा एफ। फिर ये आई जो है वो 18 है, आई जो है वो 9 है, 9 2 18 है, तो 18 जो किस नंबर पे आता है, 18 आता है आर पे। आई और दोबारा आई जो है वो 9 पे है, आई नहीं कौन सा एल है, एल जो है वो है 12 पे। तो 12 2 24, और 24 में कौन सा आता है, एक्स वाई जेड एक्स। यार नहीं मतलब बिल्कुल नहीं बताया। बताने से तो फिर कोडिंग तो तुम्हें बता ही दिया, कोडिंग तो फिर क्या मतलब बताएगा, कुछ नहीं। क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, तुम्हें निकालना होगा कि भाई कौन सा पैटर्न। कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए तो प्रैक्टिस करना होगा ना। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन बना के मैं खुद से दूंगा। पहले तो मैं एक एक वर्कशीट ऐसा दूंगा कि सबका अलग अलग वर्कशीट दूंगा, फिर मिक्स मैच करके एक वर्कशीट दूंगा, जिससे कि तुम ये पैटर्न करोगे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से करना। हम लोग ज्यादा कवर नहीं करेंगे, इसलिए तो मैंने बोला कि ये जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया है, इट इज अ वेरी वास्ट एरिया। हम लोग कैन नॉट कवर एवरीथिंग। तो हम लोग कुछ एरिया कवर करेंगे कि कम सीखो, बट व्हाट एवर यू लर्न इट विल बी रिमेन इन योर माइंड, दिमाग में रहे कि जब जाके तब कंपटीशन में एग्जाम करोगे तो ये एटलीस्ट तुम्हें पता होगा कि भाई कोडिंग ऐसा होता है, डिकोडिंग ऐसा होता है। तो ये फायदा होगा। तो हम लोग सारा कवर नहीं कर सकते, कुछ थोड़ा बहुत कवर करेंगे। जितना कवर करेंगे आई विल गिव यू द एनफ वर्कशीट, वो चिंता मत करो। मैं हर एक का एक एक वर्कशीट बनाऊंगा जिसमें 20-25 क्वेश्चन लूंगा, और फिर उसी उसी का फिर एक मिक्स करके बनाऊंगा एक। तो फिर जब अलग अलग करोगे और मिक्स वाला करोगे तो ये चीज जितने भी हम लोग ने 5 6 7 चीज करोगे वो क्लियर होगा। ओके, तो ये इसी पर है मल्टीप्लिकेशन में। बस ये 2 पैटर्न में दिया हुआ है, रिपीटेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये 3 पैटर्न में ये कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा। फिर नंबर कोडिंग भी है, वो देखेंगे। फिर ब्लड रिलेशन आता है, तो हम लोग करेंगे कल के क्लास में ब्लड रिलेशन वाला करेंगे। नंबर कोडिंग भी बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ब्लड रिलेशन करेंगे कल, सिलोजिज्म करेंगे। देखता हूँ मैं सिलोजिज्म में छोड़ दूंगा, तो इतना नहीं करूंगा अगर टाइम। ब्लड रिलेशन वी कैन। ओके, तो ये पैटर्न है। इसमें जो बुक में जो दिया हुआ है जितने क्वेश्चन उतना तो करो पहले खुद से, फिर मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, उससे फिर ये क्लियर हो जाएगा। ये नंबर वाला कल करेंगे। नंबर से ये है, ब्लड रिलेशन है, सिलोजिज्म है। सिलोजिज्म देखता हूँ।
Okay, so I can leave the class. Okay, because okay, sure. So I'll leave the class.